Hello students, good morning and I welcome you to today's physics class. Students, we have seen so many phenomena in physics. Sometimes we see rainbow is forming in nature. Sometimes we see mirage is forming in desert. Sometimes we see some disastrous phenomena like earthquake that also occurs in nature. So in nature, so many phenomena exist. Today we'll learn one more phenomenon that occurs in nature. Students, have you ever dropped something in still water? Suppose a bucket full of water and you drop something in the water, you disturb the water. Then what do we see? We see that some kind of movement is spreading throughout the bucket. Or if you, for a better observation, you can observe it in pond. A still pond, when you drop something in the pond, suppose a stone you drop in the pond, and surrounding the stone, what you will see? You will see that some circles are spreading throughout the pond, and circles after circles, they are spreading, rings after rings, they are spreading. Students, that is a phenomenon of physics, and that is wave. We call that wave is spreading surrounding the stone. The wave is spreading. Okay, so today we learn the wave, a physical phenomenon, a physics phenomenon called as wave. So let us discuss in deep about wave. Let us learn what is wave. Okay, some rings are spreading throughout across the stone that you have dropped in water, and it is spreading throughout the pond, and rings after rings they are moving. But let us understand behind it, what is the science behind it? What is it actually? Why we call this as a wave? Okay, to understand this, what is a wave? Let us describe or let us observe one more thing. Suppose we have a water surface. We have a water surface, and in this water surface, let us drop some particle here. Let us drop some particle here. Then what we will see? That some kind of rings are spreading throughout the water surface, like that. And it will keep going on. The circles will keep going spreading. And now what are these things? Let us see. So for that, let us keep some object, floating object here. Okay? यहाँ पर हम कुछ floating object रखता हूँ. अगर इस floating object को हम observe करता हूँ, तो क्या देखूँगा कि ये floating object अपनी जगह पर रह के बस ऊपर नीचे मूव करेगा. This object will just move up and down like that. Okay? So, what do you expect? Do you really expect that this object will move up and down? Or what do you expect that this object will move along the wave like this? Will this object travel along the wave, or will this object move up and down? So, let us see. So what you observe is that this object will not move along with the wave. This object will stay in its own position in the water surface. It will only move up and down. So, but what happens in case of a river? Do you expect the same thing in case of a river? So suppose instead of this pond, suppose this floating object, let us keep it in a river. If you keep this object in river water, in river में, नदी में इस ऑब्जेक्ट को, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को हम रखूंगा, तो क्या हम देखूंगा कि ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है पानी के साथ बह जाएगा. It won't stay in their own position. It will travel along with the movement of the water of the river. But here,
What happens in the pond? What happens in this case? Why this object does not travel? Though something is traveling. So what is that is traveling? If that we see the rings that spreading, अगर हम देखता होंगे तो रिंग स्प्रेड हो रहा है। ये रिंग अगर ये पानी होता, पानी इसे बहता, तो क्या होता है? फ्लोटिंग होता है, पानी के साथ चला जाता। इसका मतलब ये तो हम देख रहा हूं कि कुछ सर्कल्स मूव कर रहा है, इसमें पानी ट्रेवल नहीं कर रहा है। पानी ट्रेवल करता यहाँ पर नदी में जैसे ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बह जाता, ये भी साथ में इसे बह जाता, लेकिन ये बह नहीं रहा है, वो सेम जगह पे रह रहा है, सेम जगह पे बस ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमने फेनोमेना देख रहा हूं, कुछ रिंग्स इस पे हो रहा है, वहां पर पानी स्प्रेड नहीं हो रहा है, पानी सेम जगह पे रह रहा है, इसलिए उसमें फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी सेम जगह पे तैर रहा है। तो यहाँ पर क्या जा रहा है? तो अगर पानी मूव नहीं कर रहा है तो मूव क्या कर रहा है? तो इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा ऑसिलेशन। यहाँ पर ये जो सामान है, ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, और इस अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहता हूं? ऑसिलेशन कह रहा हूं। व्हिच कॉल्ड इज एज ऑसिलेशन, राइट? सो ऑसिलेशन होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एनर्जी। इसका मतलब इस सामान में, और ये सामान जो है ऐसे मूवमेंट कर रहा है, उसको हम क्या कहता हूं? ऑसिलेशन कहता हूं। और ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? एनर्जी। ऑसिलेशन होने के लिए हर ऑसिलेशन का एनर्जी होता है, कोई भी ऑसिलेटर का एनर्जी होता है। अभी ये ऑसिलेटर बन गया है, अभी इस ऑसिलेटर में क्या हो गया? एनर्जी है। इसका मतलब जैसे मैंने पानी में कुछ गिराया, तो पानी उस ऑसिलेशन को स्प्रेड कर दिया थ्रू आउट द वाटर सरफेस। अगर सेम ऑब्जेक्ट इधर रखूंगा, इधर भी कोई सामान रखूंगा, वो भी ऐसे ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। इसका मतलब जहां पर वेव है, जहां पर ये सर्कल जहां तक जा रहा है, वहां तक ऑसिलेशन सस्टेन हो रहा है। ऑसिलेशन हो रहा है मतलब वहां तक एनर्जी है। इसका मतलब जैसे ही उस रिंग्स स्प्रेड हुआ, उस रिंग्स के साथ एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, पानी ट्रेवल नहीं कर रहा है। पानी सेम जगह पर रह के बस मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, इससे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ट्रेवल नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे रह के बस अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। हर जगह अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, एवरीवेयर। जहां तक हम देख रहा हूं वेव जा रहा है, इससे वहां तक हमने सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट देखूंगा, और इसको कहते हैं ऑसिलेशन, राइट? इसका मतलब यहां पर अभी ऑसिलेशन मूव कर रहा है। जैसे रिंग्स मूव कर रहा है, रिंग के साथ जहां तक रिंग्स पहुंचता है वहां पर ऑसिलेशन शुरू हो जाता है। पानी देखो, जैसे कि अभी रिंग मान लो इधर पहुंच गया, यहाँ का जो पानी होगा वो भी ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा। तो यहाँ पर भी एवरी पॉइंट जहां जहां वही पहुंचता है, वहां वाटर का पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करता है। इसका मतलब एनर्जी बह रहा है, यहाँ पर पानी बह नहीं रहा है। वाटर इज नॉट ट्रेवलिंग, only energy is traveling। और ऐसा मोशन को हम कहता हूं वेव मोशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द वेव मोशन। इसका मतलब क्या है वेव मोशन? इसका मतलब क्या है कि जब वेव मूव करता है, तो यहां पर क्या मूव किया? जैसे मैंने यहां पर कुछ ड्रॉप किया, इसको हम कहता हूं पानी को डिस्टर्ब कर दिया। We have disturbed the water surface। जैसे पानी को मैंने डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्बेंस स्प्रेड होता है, और यहाँ पर कोई सामान होगा, वो सामान भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देता है। ओके, और ऐसा मोशन को हम वेव मोशन कहता हूं। यानी कि वेव मोशन ऐसा है कि emotion where medium does not travel, only energy travels through the medium। अभी ये पानी एक मीडियम बन गया है। किसका मीडियम? वेव के लिए एक मीडियम बन गया है। तो to travel wave, this water surface became a medium, and through this medium, energy is traveling in the form of what? Oscillation।
you will feel it. If you touch the water, you will feel oscillation of water. Okay, so this is how we can remember wave motion, students. That if I ask you now that what is wave motion? Wave motion is something where that a wave that travels through a medium, or sometimes without a medium also, that we learn later on. But here we learn about wave which medium. So here, for example, this wave. Okay, so wave is something, or its wave motion is a motion where it travels through a medium, and when wave moves, only energy moves, not the medium. Okay, स्टूडेंट्स, तुम लोग जब अर्थक्वेक आता है, when earthquake comes, this is also an example of wave. Do you know, students, where is the source of earthquake? The source of earthquake is deep inside the earth's surface. So earth surface का बहुत नीचे earthquake का collision होता है, earthquake plates collision होता है, और बाद में वो जो collision होता है, उस collision का एनर्जी क्या होता है, थ्रू द अर्थ सरफेस मूव करता, ट्रेवल करता है. तो वो भी एक वेव ही है. क्यों? हम देखता हूं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस का बहुत नीचे कोई एक पॉइंट में, मान लो बहुत नीचे, यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिशन कर रहा है, और ये जो कोलिशन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी थ्रू द अर्थ सरफेस ट्रेवल करता है. ओके, और ये ट्रेवल करते करते ऊपर तक पहुंचता है, और ये जो है क्या ट्रेवल करता है, ये एक एनर्जी ही ट्रेवल करता है. सिर्फ ये जो एनर्जी है बाय इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. दैट्स व्हाई जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हमारा घर या फिर कोई पेड़ पौधा हर कोई वाइब्रेट करता है, झूलते हैं, ऑसिलेशन करता है, और इसका मतलब एनर्जी, यहाँ का जो एनर्जी है यहाँ तक पहुंचता है. इसलिए यहाँ पे जो बिल्डिंग होता है, जो घर होता है, जो भी पेड़ पौधा होता है, और कोई झूलता है उस एनर्जी से. ओके, इसलिए ये भी एक वेव मोशन का ही एग्जांपल है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वेव. साउंड जो हम सुनता हो वो भी वेव है. ओके, वो भी वेव है. साउंड का जो मोशन है वो भी वेव का जरिए ही मूव करता है. ओके, जो टेलीफोन है, लैंडलाइन से जो टेलीफोन हम बजता है वो भी वेव से ही बजता है. और इसे हमने वेव के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग हम सीखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ वेव, और उसका साथ कनेक्टेड बहुत सारा फेनोमेना हम सुनेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, we'll continue with wave. Okay, students.